Okay, so you need to draw the perpendicular bisector. You're going to place the compass needle at point A, open the compass more than half, and draw the arc above as well as below the line. Once you are done with this, without changing the radius of the compass, you are going to place the compass needle at point B. Okay. Once you have drawn the arcs, you are going to use your scale and join the 2 points. This line, the black line that I have just drawn, is the perpendicular bisector of the line AB. Why do we call it a perpendicular bisector? Because it is going to divide the entire line AB into two equal halves. So if the line AB was around 8.5, so you can see that the the length from the point A to this midpoint is 4.2 something, 4.5 something, 4.25 something. Say the what is the purpose of the perpendicular bisector? It is going to divide the line into two equal parts, and the line is going to be perpendicular to the line AB. सही है, जो चीज समझ में नहीं है प्लीज मुझसे पूछ लेना. Now we are going to draw the angle bisector of the angle BAC. So किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना है आपने बनाना है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर. अब वो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले you are going to place the compass needle at point A. you are going to take a suitable radius. अब इसमें कोई restriction नहीं है कि कौन सा radius लेना है, but you are going to take a suitable radius, and then you are going to mark an arc, a very small arc on the line AB, and without changing the radius you are going to mark a small arc on the line AC. ठीक है, यहाँ तक clear है? जी सर. Then you are going to place the compass needle at the arc, at one of the arc, and draw the another arc. You are going to repeat the same process by keeping the compass needle at another arc and draw the new arc. Now the 2 points that you see, you are going to connect point A with the intersection point of the arc, and this is the angle bisector because it is going to split the angle, ये वाला angle और ये वाला angle, into two parts. Is this clear? Yes. आप measure भी कर सकते हो if the total angle. अच्छा, D use करने आता है ना? प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करने आता है, इजी है जी. Okay. So you can see that total angle BAC was 40 degree और half हो गया 20 में split हो गया. अच्छा, अब शेप्स पे बात करें. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मेक एन एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ दिस ट्राइंगल, द बेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू, द डायग्राम शोज ऑन द राइट इज नॉट ड्रॉन ऑन स्केल. तो मुझे ये ट्राइंगल बनाना है इन विच द टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूसिव एंगल इज 30 डिग्री. द बेस लाइन इज ड्रॉन फॉर मी, और वो बेस लाइन क्या है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये गिवन है, थोड़ी सी ऑफ है बट अराउंड 8 सेंटीमीटर. सही है. अब आपको क्या करना है? 30 डिग्री का एंगल मेजर करना है. सो यू आर गोइंग टू कीप योर कंपास सेंटर ओवर हियर. एंगल कितना है यहाँ से? 30 डिग्री. सो एज यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. और फिर यहाँ पे आपने मार्क करना है. Once you are done with this, you are going to take your scale
और ये जो लाइन अब मैं बनाऊंगा इट शुड बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। वंस आई एम डन विद दिस, तो 6 सेंटीमीटर पर मैं रुक जाऊंगा। देन आई एम गोइंग टू connect the last point with the bottom point। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रायंगल, सही है। जी सर। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, इसमें द बेस लाइन इज ड्रॉन फॉर यू, which is 7। अब you need to measure an angle of 75। तो यहाँ से angle of 75 is going to be here, और यहाँ से the angle is going to be 45। तो अब जब मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, I'm going to treat this as 0 और मैं अंदर वाली रीडिंग्स लूँगा, ये मेरा 45 हो जाएगा। ठीक है। Then I need to measure 8 centimeter in this line। So this is 8 सेंटीमीटर, और जो लास्ट है उसको और इनिशियल पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, सही है। जी सर। ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गई। कोई क्वेश्चन बेसिक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड? नहीं सर, ये सब समझ आ गया। ठीक है, अब हम एंटर हो रहे हैं लोसाई के चैप्टर में। ओके, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये नोट डाउन कर लो, मैं साथ साथ समझाता रहता हूँ। लोसाई इज बेसिकली द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। पहला लोकस दैट इज इन द सिलेबस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O। नाउ कोई भी डिस्टेंस हो सकता था, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं आप वो सब बनाओगी। So the path that you are going to be able to trace is a circle, circumference of a circle. So we are going to say that the locus of a point that is 3 centimeter away from a point is basically the circle, circumference of a circle. This is the first locus. This means that the locus of a point 3 centimeter from A is a circle, center O, and radius is going to be 3 centimeter. तो point O से आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे। Then अगर ये कहता है the locus of a point less than 3 centimeter from O, then that is basically the region inside the circle। क्योंकि सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आप मार्क कर लो, लेट्स से मैंने ये पॉइंट मार्क किया Q, the point, this point is going to be less than 3 centimeter because it is lying in the sorry, it is lying in the inside the circle. So all the points, all the region that is inside the circle is going to be at a distance of less than 3 centimeter।
if the question was the locus of a point greater than 3 centimeter, then that is going to be the region outside the circle. बात समझ आ रही है? सही, आप फिर से समझा देंगे? कौन सी वाली चीज? लास्ट वाली। जिसमें ग्रेटर देन वाला था। जी सर। कि अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, सो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ में तो लोकस जो बनता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बनता है। ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर का मतलब है कि इट इज गोइंग टू बी अ रीजन दैट इज बियॉन्ड 3 सेंटीमीटर, हेंस इट इज गोइंग टू लाई आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के बाहर जो रीजन लाई करेगा उस पर कोई सा भी पॉइंट अगर आप ले लो, लेट्स से पॉइंट पी, that point P is going to be outside the circle and it is going to be at a distance greater than 3 centimeter from point O. अगर इक्वल टू होता तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करता, अगर लेस देन 3 होता तो सर्कल के अंदर लाई करता। क्लियर है? ओके सर। जी सर, मैं 1 मिनट कॉपी कर लूँ? जी कर लो। The next type of locus that we are going to study is the locus of a point at a distance x from a straight line AB. So let's say the line is AB and you need to find the locus of a point that are 2 centimeter from this line. Now the set of points that are going to be 2 centimeter from the line is going to be a pair of parallel lines. So in this case, the locus is going to be a pair of parallel lines because a line, the two lines parallel to line AB and 2 centimeter away from the line AB. So any point that lies on the parallel line is going to be at a distance of 2 centimeter. Any point that lies on the parallel line is going to be at a distance of 2 centimeter from the line AB. So the locus of a point in this case is going to be a pair of parallel line. ये line ऊपर भी हो सकती थी, नीचे भी हो सकती थी AB के. So the locus of a point 2 centimeter from a straight line is a pair of parallel lines 2 centimeter away from given line on either side. Then the third locus is locus of a point equidistant between 2 points. So if you are asked to find the locus of a point equidistant from point A and point B, then in that case the locus is going to be a perpendicular bisector of the line AB. Locus of a point equidistant between 2 points अगर है यानी कि A और B, then in that case the locus of a point is going to be a perpendicular bisector because all the points that are going to lie on the perpendicular bisector will be at an equal distance from point A and from point B. If you had a point Q and it was lying on a perpendicular bisector, then the distance AQ and the distance BQ would be equal. So all those points, if you want the points to be equidistant between A and B, then those points must lie on the perpendicular bisector. Hence the locus of the points in this case is the perpendicular bisector of the 2 points. And locus of a point equidistant from the two given lines AB and AC. Now this time we want the locus of a point that are equidistant from the line AB and AC. In this case, the locus that you get is the angle bisector of BAC. So right now I just told you how to draw a angle bisector. So if you have two lines AC and AB और अगर आपको उसका angle bisector बनाना है, you're going to keep the compass needle at point A, draw an arc, keep on both sides on the line AC and AB, then using the one of the arc, keep the compass needle at this point, draw an arc, repeat the same process by keeping the compass needle over here at this point and draw the arc. The point where the two arcs intersect, you're going to join that point along with point A and draw a straight line. This is the angle bisector. Now, why is the locus an angle bisector in this case? Because any point
let's say this point, any point P, any point that lies on the angle bisector is going to be equally at an equal distance from both the lines. The distance of this point from the line AB will be equal to the distance of the same point from the line AC. Any point that lies on the angle bisector will be at an equal distance from both the lines. Hence, we get the locus as angle bisector. Please note this down. Okay. So Okay. in this question, you need to draw the locus of point that are equidistant, that are at a distance of 3 centimeter from the shape. सही है? So 3 centimeter from the shape. अब मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला फिगर बना लो, ठीक है? 4 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस ये सेंटर लेके एक रेडियस आर्क बना के इसको ज्वाइन कर दो. ओके, तो अब देखो करना ये था इसमें कि द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द शेप, यानी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन. सो मुझे 3 सेंटीमीटर के फासले पे एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी. सही है? सो ये 3 सेंटीमीटर की मेरे पास पैरेलल लाइन आ जाएगी. इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लाइन, सो 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10 तक जाएगा. और फिर यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी. टू से 1 2 3. ओके, तो यहाँ तक आपने कर ली. ठीक है, इसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक योर कंपास, और कंपास का रेडियस ऐसा रखोगे, नीडल इसकी इस पॉइंट पर आएगी और इसका रेडियस इज गोइंग टू बी 3, और यहाँ से यू आर गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क और ये यहाँ जाकर मिलेगी. तो ये भी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द शेप हो जाएगा. इसी तरीके से विदाउट चेंजिंग एनी रेडियस यहाँ पर कंपास नीडल रखोगे, ये बना लिया.
आप क्या करेंगे? सर इस रेडियस भी पॉइंट, हम 3 सेंटीमीटर का लेंगे। रेडियस भी 3 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ पे रख के 3 सेंटीमीटर का यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसके बाद कैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको पता है ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है आपका 2। सो आप रेडियस लोगी अब 5 का, इस पॉइंट पर रखोगी, इसको एक्सटेंड करोगी 5 का, और ऑल द वे यहाँ से 5 की आर्क लेके इस पॉइंट को कंटिन्यू कर देगा। तो ये आपका पूरा शेप बन गया। अब ये जो भी बाउंड्री बनी है दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द शेप। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है। अब ये कहा था ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो मैंने देखो क्या किया, आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए एंड बी। तो यू नो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर इसमें वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। तो अगर दो लाइंस के इक्वल डिस्टेंस बनाना है लोकस, दैट इज गोइंग टू बी द एंगल बाइसेक्टर। और जो कॉमन पॉइंट क्या है ए बी और ए सी में, इट्स एंगल ए। तो वही प्रोसेस जिस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हो, आप एंगल ए पे एंगल बाइसेक्टर बना दोगे। ठीक है। अच्छा, आओ ये क्वेश्चन करते हैं। ABC is a triangle. Construct a diagram that would allow you to find the region inside a triangle which is less than 7 centimeter from the point B. तो पहली स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें कौन सा लोकस जहन में आता है? लेस देन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, ये कौन सा लोकस है? अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस ये सबसे पहला लोकस था, उसमें क्या था? इट वॉज अ सर्कल। याद आया? जी सर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो अब 7 सेंटीमीटर का आप रेडियस लेके आर्क बनाएंगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऑल्सो सेज दैट द रीजन लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ऑल्दो जैसे ये पूरा सर्कल बनता, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का, लेकिन बिकॉज द रीजन इज इनसाइड, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इनसाइड। 7 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस लिया, और ये मैंने सर्कल का पार्ट बना दिया अंदर, इनसाइड ट्रायंगल ABC। देन द क्वेश्चन सेज क्लोजर टू द लाइन CB देन द लाइन CA। तो CB और CA, क्लोजर टू द लाइन CB देन टू CA, इज इट एन एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या पैरेलल लाइन? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? सी। C। अच्छा, सो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए यू जस्ट नीड अ सूटेबल रेडियस। तो आपने यहाँ आर्क लगाया, आपने यहाँ आर्क लगाया, यहाँ से कंपास यहाँ रखा, एक आर्क बनाया, कंपास की नीडल यहाँ रखी, दूसरा आर्क बनाया, फिर स्केल से ये दोनों पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, तो आपने एंगल बाइसेक्टर भी बना दिया। नियरर टू पॉइंट ए एंड देन पॉइंट सी, तो अगर होता है इक्वल टू पॉइंट ए एंड इक्वल टू पॉइंट सी, देन व्हाट लोकस वुड यू हैव ड्रॉन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Perpendicular bisector of point A and point C. So now I'm going to draw the perpendicular bisector of point A and point C. So perpendicular bisector बनाने के लिए you are going to open the compass needle more than half. ठीक है, इतनी काफ़ी। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया। अब अगर आप रीजन मार्क करना है, ठीक है, रीजन शेड करना है, so read the question again. You want to construct a diagram that would allow you to find the region inside the triangle which is less than 7 centimeter from the point B. So should it be on the circle, inside the circle, or outside the circle? इनसाइड द सर्कल। Inside the circle. तो यानी कि it should lie somewhere here. ठीक है, ये जो है ना inside the circle, यहाँ से यहाँ पे कहीं लाई करना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये थी। फिर सेकंड कंडीशन कह रहा है क्लोजर टू द लाइन सी बी देन द लाइन सी ए। सो क्लोजर टू द लाइन सी बी देन टू द लाइन सी ए मीन्स के एंगल बाइसेक्टर यूज करके इट शुड बी क्लोजर टू द लाइन सी बी। सो इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर के टुवर्ड्स द राइट होगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा? रिक्वायर्ड रीजन टुवर्ड्स द राइट होगा, राइट बिकॉज होगा। दैट इन दैट वे इट इज गोइंग टू बी क्लोजर टू द लाइन सी बी। तो सर्कल के अंदर और एंगल बाइसेक्टर के राइट। फिर कह रहा है नियरर टू पॉइंट ए देन पॉइंट सी। सो इस केस में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था एंड इट सेज नियरर टू पॉइंट ए। सो सर्कल के अंदर एंगल बाइसेक्टर के राइट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा या नीचे होगा? यहाँ पे अगर पॉइंट ए से क्लोज होना है तो ऊपर होगा, ऊपर। ऊपर होगा। तो ये जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस रीजन में, सही है। सो यू आर गोइंग टू शेड दिस रीजन। सही है, ये है वो रीजन है। तो आपने इस रीजन को शेड कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay. Using ruler and compass, construct triangle ABC with AB 8.8, BC 7 centimeter and CA 5.6. ये कर सकती हो मेरे लिए अभी? Draw a horizontal line AB of 8.8 centimeter. अच्छा, जब AB की लाइन 8.8 बना ली, जी सर, लाइन बना ली। okay, then you are going to take out your compass and open the arc. Keep the compass needle at point A and open the arc of 5.6 centimeter long. सो ए सी पे एक आर्क बनाओगी 5.6 सेंटीमीटर की,
और फिर पॉइंट बी पे कंपास नीडल रखोगी और आर्क लोगी 7 सेंटीमीटर की, रेडियस लोगी 7 सेंटीमीटर की और आर्क बनाओगी आप। जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट सी हो जाएगा, फिर ज्वाइन करके ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा आपके पास। सर ट्रायंगल तो बन गया। ट्रायंगल बन गया, ओके। फिर ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो 5.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए का मतलब है यू आर गोइंग टू गेट अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस इज गोइंग टू बी 4.6। तो नीडल कंपास की यहाँ रखो पॉइंट ए पे, हैव अ रेडियस ऑफ 4.6 और एक सर्कल बना दो। कर लिया सर। कर लिया, ओके। then you need to have you need to draw the locus of a point which is equidistant from BA and BC. So equidistant from the two lines, is it a perpendicular bisector or an angle bisector? एंगल बाइसेक्टर। Angle bisector and angle B. So you're going to draw an angle bisector at B. Check करो ये बनेगा। सर लाइन बन गई। Line बन गई। Then they are saying find the distance between the 2 points which are 4.6 centimeter from A and equidistant from B and C, giving your answer in centimeters. वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे जो 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए भी हों और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी भी हों। इसका मतलब है कि वो दो पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस पे भी लाई करते हैं, एंगल बाइसेक्टर पे भी लाई करते हैं। तो आप ये देख सकती हो कि द टू पॉइंट्स that lie on the circle and the angle bisector are point Q and point P। मैंने ये दो पॉइंट्स मार्क कर दिए। ठीक है, जब आपने ये दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, आपके पास भी आ रहे हैं ये दो पॉइंट्स। जी सर आ रहे हैं। Okay, then just measure the distance between the 2 points. Is it coming out to be 7? सर 7.2 या ऐसे कुछ आ रहा है। सही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात किस तरह करना है। जी अच्छा, सर। आई एम ओके।